Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. With the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I would like to start today's session. I am Tasbih Irfan, the host of today's session. First of all, I would like to introduce you about health and nutrition. HSN. HSN is basically a non-profit organization founded by Ms. Arij. The goal behind the creation of this society is to spread knowledge to all over the world by creating multiple webinars on different topics with our honorable guest speakers. It's my pleasure to host today's session and welcome you all in our today's session on the topic exercise and healthy eating. Now I would like to introduce you about our guest speaker, Miss Rabia Shabir, which is by profession is a nutritionist, done her MPhil in HND from University of Lahore, MSc in clinical psychology from King Edward Medical University, consultant nutritionist, Lifeline Hospital, Johor Town, Lahore, consultant nutrition, Sanabal Health Service, Lahore, senior lecturer, Department of Nutrition, Affiliation Institute, Lahore, Senior Lecturer, Department of Psychology, Affiliation Institute, Lahore, and Research Supervisor, Department of Nutrition, Affiliation Institute, Lahore. Now, I would like to invite Ms. Tabia Shabir to start today's session. Assalamu alaikum everyone. I'm really honored by Health and Nutrition for this invitation and मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है क्योंकि मेरी अपनी एक बहुत ज़्यादा डियर और बड़ी डिवोटेड और बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट तस्बीहा इरफान इस सेशन की होस्ट है. I would also like to congratulate Areej and Tasbiha for creating this organization where we can share our expertise to different people living around the globe in such isolation and quarantine situations. Before any delay, I would like to begin with the topic. Since जो ये webinar है, it is based on the topic of exercise and nutrition. Basically healthy eating and exercise. ये एक discipline आपका आ जाता है sports nutrition के अंदर. Different type of sports हैं. कौन कौन सी स्पोर्ट्स हम कर सकते हैं, कैसी किस किस टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से रोल प्ले करती है, एंड above all what are the main recommendations being a nutritionist and a dietitian I can give to someone regarding exercises and also regarding a diet which is useful for the persons who are involved in physical activities. फर्स्ट तो बिगिन अगर मैं कहूँ करूँ प्रॉपरली इस टॉपिक को तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्टेट दैट आवर होल सोसाइटी टुडे has turned into a global village because of the improvised technologies and because of various technical appliances which are putting forth our mission of being indulged in various physical activities for the sake of fitness, for the sake of achieving an optimal health, for the sake of pleasure sometimes. So the world is now in a state of exercise boom. मतलब आप कह सकते हैं कि everyone is quite obsessed with exercise. Everyone is trying to indulge, trying to involve himself or herself in various type of physical activities regardless of their age. There are a large number of the people around the globe which are continuously engaged in some form of the physical activities for different durations on different type of activities also. The most important thing about exercise is that exercise is not something that is performed in our regular routine. Like if we are doing some household chores, that part is not considered as an exercise. जिस तरह जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस सेंस में कि वो बैक टू बैक लेक्चर्स ले रही हैं और उनकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं तो वो ये समझे कि they are quite much active and they do not need to spend some time for their fitness, then that is not considered a part of exercise or being physically active. Rather,
In the same time, on the same page, I would like to mention one thing more. जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर अगर वो वाइफ्स नहीं है तो वैसे ही घरेलू कामकाज करने वाली जो खवातीन है, उनका एक काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है या फिर एक मिथ भी क्रिएट की गई है कि अगर वो घर में सफाइयाँ करती हैं और सारा टाइम अपने घर बार को देखती हैं और काफी कामों में इन्वॉल्व रहती हैं, तो वो चीज उनको उनकी एक्सरसाइज है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. इनफैक्ट एक्सरसाइज इज समथिंग फॉर विच यू expect some of the time from your busy minutes, or it is for an hour or two, or what type specific time आप अपना जो पूरी शेड्यूल में से निकालते हैं for some specific duration, वो चीज आपकी कंसिडर होती है एक्सरसाइज के अंदर या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर वो कंसिडर होती है. तो एक ये इंग्लिश की टर्म एक तो है फिजिकली एक्टिव होना, और एक टर्म आपकी फिजिकली एक्टिव होना है एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जिस तरह से अगर हम अपनी बात करें स्टूडेंट लाइफ में, अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स नो डाउट दे आर फिजिकली वेरी एक्टिव. सारा टाइम उछल कूद करना, बाहर फिरना, more than 10 or 20 times different floors climb करना डेली बेसिस पे, क्लासेस के अंदर एक्टिव रहना या टीचर्स के काम के लिए इधर उधर जाना आना, ये सब चीजें जो है वो आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज. ये एक बहुत मिसकंसेप्शन लोगों में पाया जाता है, और अक्सर लोग जो है वो वेट लॉस के लिए क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, और खास तौर पे फीमेल, वो ये कहती है कि हम तो सारा दिन काम करते रहती हैं, स्टिल घर के काम हम करती हैं, स्टिल वेट लॉस नहीं हो रहा है. तो उस उनके घर के कामों की लिस्ट अगर आप सुने तो उसके अंदर कहीं कोई ऐसा काम नहीं है जो कि किसी एक्सरसाइज पिक्यूलियर किसी एक्सरसाइज को, चाहे वो कोई स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज है या फिर एंड्योरेंस एक्सरसाइज है या सिंपल योगा है, एरोबिक्स है, इन चीजों को टारगेट नहीं करती. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको ये चीज देखना बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वेदर वो इंडिविजुअल नॉर्मली एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बजाय फिजिकली एक्टिव है, या फिर वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर एक शेड्यूल के साथ अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख रहा है थ्रू एक्सरसाइजेस. तो फिजिकली एक्टिव होना जो है हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज जो है स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेस, they can be for various purposes. They can be for the purpose of pleasure, they can be for the purpose of relieving stress, they can be for the purpose of fitness. फिटनेस को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, और उसके साथ साथ आई हैव सीन मैनी इंडिविजुअल्स which do involve themselves in various type of exercises just to gain figure, just to relieve their stress. Because आपके eating patterns, आपकी जो lifestyle factors हैं, जिनके अंदर एक्सरसाइज भी आ जाती है, आपके ईटिंग पैटर्न्स भी आ जाते हैं, ये सब के सब आपकी हेल्थ को टारगेट करते हैं. If I recall about the definition of health, which has been proposed by World Health Organization, तो वो ये आपको कहती है like health is a state of complete physical, mental, social and emotional well-being. आप इनमें से किसी भी सेगमेंट को स्किप नहीं कर सकते हैं. You need to maintain your physical, social, emotional and mental well-being in order to achieve an optimal state of health. If you skip any of the department, any of the domain, then it means you are not in a balanced health state. इसीलिए I have encountered many individuals, and even sometimes for my own self, when I am quite much stressed, I go for a walk of about 20 minutes or 30 minutes. I do some sort of stretching exercises in order to relieve the stress, or in order to just calm down my nerves. This even decision making में भी ये चीज बड़ी help out करती है, because sometimes when we are not able to make decisions in any complexities, we need to relax our body, we need to relax our soul. For that purpose ये recommend किया जाता है आप aerobics करें, so that your cognitive abilities can also become polished. एनी हाउ प्रीवियस की अगर बात की जाए तो एंशियंट ग्रीक ने जो आपका कंसेप्ट है एक्सरसाइजेस का, और एक्सरसाइज के अंदर न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो इंसान की इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, या किस हद तक इंक्रीज होती है अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर डाइट प्लान, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर कंजम्पशन ऑफ मील्स.
तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले एंशियंट ग्रीस में स्टार्ट हुआ था व्हेन दे रियलाइज्ड दैट क्योंकि कहती वहाँ पे पूरी अपनी मैराथन मम्मा पे और कहती वहाँ पूरी पर अपनी कुछ मम्मा आर्ट्स पे भी परफॉर्म खिरा की की याद जाती रहती थी। इसको देख के वहां पर फिर ये चीज देखी जाती थी कि मेनी टाइम्स एंशियंट ग्रीस के अंदर क्योंकि एथलीट्स जो थे आफ्टर उनका एक डाइटरी पैटर्न चलता आ रहा था नॉर्मली, जिस तरह हम कहते हैं कि कोई एडल्ट मेल है या फीमेल है, रफली 1800 किलो कैल से लेकर 25 26 और मैक्सिमम 2800 किलो कैल्स आपकी एक एडल्ट मेल और फीमेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये वो है जो कि नॉन एथलीट्स में आ जाते हैं या फिर नॉन स्पोर्ट्समैन में आ जाते हैं। एक रेगुलर जो आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आप कह लें, उसमें हम वेरी करवाते हैं 1800 से मैक्सिमम 2800 2700 किलो कैलोरीज तक। उन्होंने ये देखा कि ये वाली जो चीजें हैं ये किसी एथलीट्स के लिए या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि लॉन्ग टाइम स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस में या फिर बहुत हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, ये उसके लिए इनफ नहीं है। फिर उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया देयर मस्ट बी अ नीड टू इंट्रोड्यूस समथिंग एडिशनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ओवरऑल कैलोरिक इनटेक ऑफ द इंडिविजुअल्स who are involved in some strenuous activities, who are athletes or who belong to any sports. वहां से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो पहले उस वाले कॉन्सेप्ट से लेकर ऑनवर्ड्स फिर कुछ इस तरह से भी रहा कि जो एक्सरसाइजेस थी या फिर फिजिकल एक्टिविटी वाली जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जो डोमेन्स आ जाते हैं, उनको लिमिट किया गया वहां तक कि एज अ सॉर्ट ऑफ वेट लॉस और वेट गेन प्रोसेसेस और फॉर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिम तक लिमिट कर दिया गया, सिर्फ स्पोर्ट्समैन तक लिमिट कर दिया गया। बट ड्यू टू एडवांसमेंट्स, जिस तरह मैंने सबसे पहले ये स्टार्ट करते हुए कहा कि आवर वर्ल्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ ग्लोबल विलेज। जिस तरह एडवांसमेंट होती रहती है, टेक्नोलॉजीज आती रहती है, उस तरह उन टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके पास नॉलेज भी आता रहता है। और उसी बेसिस पे आप ये देखते हैं कि नाउ people they are more focused on in indulging themselves in exercises for sake of their own health, for sake of their own fitnesses. इसीलिए लोगों ने इस चीज को भी देखा। उसके साथ साथ डिफरेंट हमारे पास मेडिकल डिपार्टमेंट्स इस तरह के हैं जो कि फिजिकल ट्रेनिंग्स को, फिजिकली टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस को वो लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन द मेडिकल प्रोसीजर्स और फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल इलनेसेस, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए पहले, डायबिटीज के इंडिविजुअल्स के लिए, और रेमेटिक हमारे पास डिजीजेस हैं जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीजेस है, रोमेटिक आर्थराइटिस है आपके पास। पहले ऐसी डिजीजेस के लिए इंडिविजुअल्स को लिमिट कर दिया जाता था कि वो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज जो कि हार्ड है, लेबर टेलर्ड एक्टिविटीज हैं, उन वो परफॉर्म ना करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द रीसेंट एडवांसेस एंड रिसर्चेस, ये चीज प्रूव की गई है कि अगर इन लोगों को ऑप्टिमल लेवल तक आप फिजिकली एक्टिव रखें तो वो चीज उनकी वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग अपना वेट कंट्रोल कर लेते हैं तो वो चीज उनके ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर सकती है। सो इसी तरह एज अ सॉर्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस भी फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है एट द करंट ट्रेंड्स। जिस तरह आप देखते हैं कि फिजियोथेरेपी के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया जाता है। इवन कैंसर के इंडिविजुअल्स के स्ट्रेस लेवल्स को आप एलिविएट करने के लिए भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज उन्हें करवाई जाती हैं। और इसी तरह से इवन साइकेट्री के पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी उनके भी सिम्टम्स को कुछ हद तक कंट्रोल रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज के लिए अंदर परफॉर्म करवाया जाता है उन्हें। So nowadays, the physical activities have become a routine as a sort of rehabilitation processes, as well as for gaining pleasure, relieving stress in the normal life hassles, और आपके ओवरऑल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट किया जाता है। अब उसके अलावा एक तो सब बात इम्पोर्टेंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि आ रहे हैं आपके कि फिजिकली एक्टिव होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ के जो लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं उन लोगों को उतनी ही ज्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बॉडीली फंक्शंस, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एथलीट्स जो है वो आपके जैसे फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली दे डू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग that gives them with more calories, something that can make them more energized, something that can help them in their pace
help them in the pace of their metabolic processes, other than the individuals who are leading sedentary lifestyles. और एनर्जी एक्सपेंडिचर जिस तरह से मैंने मेंशन किया, 880 लाइक रफली 1800 टू मैक्सिमम 2800 किलो कैल्स आप एक एनर्जी कैलकुलेशंस हम रखते हैं फॉर एन एडल्ट मेल और फॉर एन एडल्ट फीमेल। लेकिन जो आपके एथलीट्स हैं डिपेंड करता है उनकी एक्टिविटीज किस हद तक स्ट्रेनुअस हैं, क्या वो लॉन्ग ड्यूरेशन की लो एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं या फिर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। यू कैन इवन एड अप टू 1000 किलो कैलोरीज इन देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ एक और भी बड़ा अमेजिंग फैक्ट है वो मैं शेयर करूंगी इस तरह से कि जो नॉर्म आपकी एक बहुत मैराथन रेस बहुत ज्यादा कॉमन है, टूर डी फ्रांस। आई होप आप सब फेमिलियर होंगे उससे। टूर डी फ्रांस के अंदर जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है पर डे इट इज ऑलमोस्ट 6500 किलो कैलोरीज। और उसके साथ साथ जो माउंटेन साइकिलिंग करते हैं और इवन टूर डी फ्रांस में भी लैंड से होते हुए माउंटेन्स क्लाइंब करके दोबारा उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन पे वापस आना होता है। तो इवन माउंटेन क्लाइंबर्स जो है थ्रू साइकिलिंग जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं उनकी एनर्जी एस्टिमेशंस पर डे अप्रोक्सीमेटली 9000 टू 10000 किलो कैलोरीज पर डे कंसिडर की जाती है। दिस इज क्वाइट मच एज कंपेयर टू द energy needs of a person who is living a sedentary lifestyle, just a person like us. क्वेश्चंस जो है मैं बिल्कुल अब एक ये ओवरव्यू जो है लेक्चर का कम से कम मैं 20 मिनट्स तक मैं फिनिश कर दूं, विद इन 15 टू 20 मिनट्स मैं एक ओवरव्यू दे दूं वेबिनार का। फिर उससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं तो मैं तस्बीहा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्वेश्चंस को होल्ड करें या नोट डाउन करते जाए और फिर मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगी वन बाय वन। अच्छा, उसके अलावा जहाँ तक अब बात आ जाती है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी अब कहाँ से कंज़्यूम की जाए, अगर कोई एथलीट्स हैं ख़ास तौर पे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी वो कैसे कंज़्यूम करें कि वो उनकी डेली बेसिस पे या तो 6000, 7000, 9000, 10000 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करें। तो जब तक लोगों को नॉलेज नहीं होता या फिर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल के पास जाते हैं जो ट्रेंड है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। मोस्टली हमारे जिम्स के अंदर यही चीज़ें चलती आ रही हैं कि लोग फिटनेस प्रो बन गए हैं लेकिन उनको ट्रेनर्स बन गए हैं लेकिन उन्हें न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज नहीं है। अपने सप्लीमेंट्स अपने ब्रांड्स को लोकलाइज करने के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जो चीज़ें उनको समझ में आती हैं वो हर इंडिविजुअल पे अप्लाई करवाते हैं। सो यहाँ पर मैं सबको टारगेट नहीं कर रही हूँ। देयर आर मेनी जिम्स हु हैव देयर ओन प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन वर्किंग इन देयर जिम। दोज आर प्लानिंग डाइट्स फॉर देयर क्लाइंट्स। लेकिन मोस्टली यही चीज हो रही है कि लोगों को नहीं पता कि जिम के अंदर भी एक न्यूट्रिशनिस्ट की इम्पोर्टेंस है। रिसेंटली आई एनकाउंटर्ड एन एक्सपीरियंस। कुछ इस तरह से था कि एक जो जिम है वहाँ से इवन मेरी एक क्लाइंट ने मुझे ये बताया कि वो जिम कर रहे थे और वहाँ पर जिम के जो उनके ट्रेनर थे, नोट एक अच्छी रिप्यूटेड जगह पर वो जिम है। वी आर नॉट सपोज टू रिवील द नेम्स। एक बहुत अच्छी रिप्यूटेड जगह पर एक जिम है एस्टेब्लिश्ड, काफी क्लाइंट्स हैं वहाँ पर जो कि और हर क्लाइंट को इंडिविजुअल ट्रेनर मिलता है और नो डाउट दे आर गिविंग रिजल्ट्स एज वेल। लेकिन वो वेट लॉस के लिए अब ये कि उनके ट्रेनर ने उनके साथ जो डाइट शेयर की हुई थी, उन्हें जो सजेस्ट की हुई थी वो डाइट अब मैंने जब देखी है तो आई वाज एस्टोनिश्ड, क्योंकि वो डाइट इस तरह की थी जो कि आपकी स्पेशल नीड्स फुलफिल नहीं कर रही थी। क्योंकि उस डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली होता यूं ही है कि एक या दो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया जाता है कि जो रिगार्डलेस ऑफ द क्लाइंट नीड्स बाकी न्यूट्रिएंट्स आपके सप्रेस हो जाती हैं और कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं और डिफरेंट इलनेसेस भी ऑनसेट हो जाती हैं। अब यूँ ही था और मैंने मुझे वैसे ही बड़ी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने वहाँ पर मुझे मेरे क्लाइंट ने ये कहा कि इस तरह से नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने डिप्लोमास किए हुए हैं एंड दे आर क्वाइट मच क्वालिफाइड इन प्लानिंग द मील्स फॉर देयर क्लाइंट्स। तो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने उनसे वो नंबर नोट करके उस जिम पे कॉल की ये पूछने के लिए कि वहाँ पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन है। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू गेट एन आंसर ऑफ नो।
उनको पता ही नहीं था कि न्यूट्रिशनिस्ट का काम हो सकता है जिम के ऊपर। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि कोई डायटीशियन की ज़रूरत होती है जिम पे। और ये एक आप कह सकते हैं कि हमारे मुआशरे का अलमिया है कि इतनी हद तक लोगों को स्टिल अवेयरनेस नहीं है। तो उन्हें इवन पता ही नहीं था और फिर उन्होंने उल्टा मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या जिम में लोगों की ज़रूरत होती है? तो मैंने फिर अपनी तरफ से एक मज़ाहिका ख़ेज़ जवाब दे के और फिर मैंने बंद कर दी कॉल। तो इसी चीज़ को देखने के लिए लेकिन ये है कि अब जितना ज़्यादा हम इस तरह का कोई वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू कम से कम आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि जिम्स जाते होंगे, फीमेल्स होंगी, मेल्स होंगे, तो काइंडली वो अपने जिम्स में इस बात पे ज़रूर एम्फेसिस डालने की कोशिश करें कि ट्रेनर्स जो हैं वो आपके न्यूट्रिशनिस्ट, डायटीशियन नहीं होते। ठीक हो गया? वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग या मील प्लानर वहाँ पर वो होने चाहिए, दोज़ हू हैव द डिग्री, दोज़ हू हैव द नॉलेज, those who have expertise as a dietitian. कमिंग बैक टू द नीड्स, न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में जिस तरह अब सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो बैलेंस डाइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे ऑल आर इक्वली एसेंशियल। और बिल्कुल इसी तरह से ये वाले न्यूट्रिएंट्स आपके अगर आप जिम कर रहे हैं या फिर आप अगर कोई एथलीट है या फिर आप किसी आप में कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप किसी भी स्पोर्ट्स को कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली एसेंशियल फॉर यू जस्ट लाइक द अदर इंडिविजुअल्स। आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स हैं। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि वाटर को भी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में लिखा जाता है, बट आई डू नॉट कंसिडर वाटर एज अ न्यूट्रिएंट। वाटर के अंदर एक तो 0 कैलोरी है, उसके अलावा वो न्यूट्रिएंट नहीं है, ऑल्दो वाटर इज एन एक्सट्रीमली एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ आवर लाइफ। फिजिकल जिस तरह से फर्स्ट अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए एक प्रेफर्ड फ्यूल है। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें इस बात का एहसास हो जाता है that carbohydrates are extremely important for physical activities as well। जितनी ज्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ प्राइमरी फ्यूल एक्ट करते हैं। आपके जो ब्रेन सेल्स हैं दे ऑल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज उनको चाहिए। उसके बाद कहीं जाके बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स डिक्रीज होने लग जाए, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसीज हो जाए, तो फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपकी बॉडी डिपेंड करती है। अब इसी तरह आप अगर इस बात के लिए जो आप जब हम कर रहे होते हैं बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जैसे आपकी कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं बहुत इंटेंस होती हैं। उसके अलावा आपकी वैसे ही जिम के अंदर जो बहुत वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हैं आपकी, ये जो वो वाली एक्टिविटीज जो कि बहुत इंटेंस हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन की हैं आपकी, तो वो ऐसी एक्टिविटीज आपकी ज्यादा करवाती है बॉडी से। तो इसीलिए अगर आप किसी स्ट्रेनुअस, बहुत ज़्यादा लेबर्ड, बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इफ यू आर गोइंग इन अ जिम या फिर एक्सरसाइजेस के अंदर आपने खुद अपनी रूटीन इतनी अच्छी ऐसी बनाई हुई है आपने, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड और इंटेंस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो फिर उस सूरत में कार्बोहाइड्रेट्स आपको डेफिशिएंट नहीं रखने अपनी बॉडी में, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके यूटिलाइज़ हो जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, आपके मसल्स को, आपके सेल्स को एनर्जी मिलेगी और उतना ही अच्छा आपका मेटाबॉलिज़्म रहेगा और उतनी जल्दी आप वेट अपना लूज़ करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो आपकी रिकमेंडेड इनटेक है as per the recommendations which have been proposed in the balanced diet, तो कार्बोहाइड्रेट्स की रिकमेंडेशंस आपकी 45 से 55% तक वेरी करती हैं और कम से कम 50 टू 60% अगर आप किसी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं, तो कम से कम 50 टू 60% कार्बोहाइड्रेट्स आपने ज़रूर लेने हैं। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपकी आ जाते हैं, 2 तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स पे अगर 2 तरह की फॉर्म्स में इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे डाइसैकेराइड्स हो गए, आपके ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, इनके भी ब्रेकडाउन होकर सिंपल कार्ब्स ही बनते हैं आपके। और जिस तरह कुछ आपके बाकी आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके आ जाते हैं जैसे डाइटरी फाइबर्स हैं आप, और उसके अलावा एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम समटाइम्स हम उन्हें स्लो कार्ब्स भी कहते हैं,
और जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर मोनो, डाई एंड ओलिगोसैकेराइड्स इंक्लूडेड हैं, दे आर क्लासिफाइड एज फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि एक तो ये कि वो सिंपलर शुगर्स हैं, बॉडी के अंदर फॉरन ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा देती हैं जाकर, और जो आपके स्लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ये एक तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, काफी टाइम तक वो स्टे करते हैं अंटिल दे आर कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और कुछ गैस प्रोडक्शन होती है, कुछ उनकी फर्मेंटेशन हो जाती है, तो इसीलिए वो आपके स्लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और वो आप ज्यादा एनर्जी फिर प्रोवाइड करते हैं आपको एज कम्पेयर टू द अदर वंस, सिंपलर वंस, क्योंकि सिंपल आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके क्विक एनर्जी की सोर्सेज हैं। आपको क्विक एनर्जी वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो एनर्जी आपके लिए कहीं भी बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की जहां तक इनटेक की बात है, तो आपकी होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी सोर्सेज हैं आपकी। लेकिन जब आप चूज कर रहे होते हैं फ्रूट्स कंजम्पशन, तो इस चीज को मॉनिटर जरूर करना चाहिए। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो कि न्यूट्रिशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो भी स्टूडेंट हैं अभी या कंसल्टेंट्स के तौर पे कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अ, उन्हें इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए कि अगर आप अपने पेशेंट्स को कोई अगर जिम गोइंग इंडिविजुअल है और वो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए या फिर आपसे वैसी डाइट प्लान बनवा रहा है, आप उसको कार्ब्स रिकमेंड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर आपने ऐसे इंडिविजुअल्स को इस तरह से ट्रेन करवाना है कि आप उनको उनके ग्लूकोज लेवल्स भी मॉनिटर करो। आपने वंस अ मंथ उनका HbA1c अगर आप करवाती हो तो पास्ट 6 मंथ्स की हिस्ट्री आपके पास आ जाती है, या फिर उनका वंस अ मंथ BSL करवा लो, ताकि आप इस चीज को भी देख सको कि फ्रूट प्रोसेस वो कैसी ले रहे हैं। या फिर आप उनको फ्रूट्स की लिस्ट प्रोवाइड करो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और ग्लाइसेमिक लोड भी आप साथ साथ उसका बैलेंस रखो। इसी तरह आपकी एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ तक फैट्स की बात आती है, तो फैट्स हम लेते हैं, फैट्स आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर, लेकिन फैट्स का जो प्राइमरी पर्पस है वो आपकी डिफरेंट और तरह भी आ जाता है, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स को बनाना, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, और उसके अलावा आपकी एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन में फैट्स इन्वॉल्व हैं। और फैट्स आपके प्राइमरीली यूज्ड होते हैं लो इंटेंसिटी वर्कआउट के अंदर। अगर आप कोई लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि उस टाइम पे आपके फैट्स जा रहे होते हैं। जैसे सिंपल रनिंग कर लिया आपने, ब्रिस्क वॉकिंग कर लिया आपने, रोप स्किपिंग आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक करते हो या मैक्सिमम 20 मिनट्स तक करते हो, तो उसमें आपके फैट्स जा रहे होते हैं। ठीक है, वो आपकी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। अ, तो उस सूरत के अब क्या है कि आप अगर ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, तो वो चीज आपको बेनिफिट देती है कि आप एट द टाइम ऑफ लो इंटेंसिटी वर्कआउट आपके फैट्स जो है वो आपके बर्न आउट हो जाए और आपके कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहें। टेस्ट रिपीट मैंने आपसे कहा है कि BSL जो बेसिक शुगर लेवल्स है, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है आप उसको चेक कर रहे हैं, HbA1c करवा लें, पास्ट 6 मंथ्स की उसकी सारी हिस्ट्री निकल आएगी, जो ग्लाइसेमिक लोड है उसकी बॉडी का। HbA1c करवा लें या BSL करवा लें एज पर योर ईज, एज पर योर क्लाइंट सीज। अच्छा, उसके अलावा एक तो ये बात कि जितना भी इंडिविजुअल ज्यादा फिट होगा, तो इट मींस वो इंडिविजुअल जो है उसकी कहीं ना कहीं कार्ब्स जो है फॉर प्रोविजन ऑफ एनर्जी स्पेयर होते रहते हैं, क्योंकि कार्ब्स का बेसिक पर्पस है एनर्जी के लिए स्पेयर होना। आप एक और बात आपकी सरप्राइज के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप जितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे वो आपके एनर्जी में ही यूटिलाइज हो जाएंगे इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस। अगर आप किसी किस्म की एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपके कार्ब्स भी कहीं ना कहीं कहीं भी बर्न आउट नहीं हो रहे हैं, कहीं वो एनर्जी जो मिल रही है आपकी वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। So you need to maintain a balance between your energy intake and your energy expenditure. कार्ब्स का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। आपकी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के अंदर कार्ब्स आपके यूटिलाइज होते हैं, इसीलिए वो वाले लोग जो कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, दे शुड कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स। और वो इंडिविजुअल्स जैसे सिडेंटरी इंडिविजुअल्स थे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने वर्कआउट शुरू किया है, और यूजुअली आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट से स्टार्ट लेते हो, तो लो इंटेंसिटी वर्कआउट लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं जो उसके अंदर आपके फैट्स मोबिलाइज होना स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पे आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने अच्छे लिए होंगे, तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे और फैट्स मोबिलाइज बर्न आउट होते रहेंगे। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी होगी, आपको आपने कार्बोहाइड्रेट्स आपने इनएफिशिएंट लिए हुए हैं,
तो उस सूरत में आपकी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी के अंदर फैट्स एनर्जी प्रोविजन के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, और वो आपकी वर्कआउट की वजह से फैट्स का बर्न नहीं होंगे। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात आ जाती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ओवरऑल स्केलेटल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। अब आपकी प्रोटीन्स की सोर्सेज जो है वो आपकी कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों आती हैं। एक और बड़ी आपकी मिसकंसेप्शन चलती है रिगार्डिंग वर्कआउट, रिगार्डिंग जिम्स एंड ट्रेनर्स, वो ये कि वो ज्यादातर प्रोटीन्स के ऊपर लगा देते हैं इंडिविजुअल्स को। हाँ, प्रोटीन्स आर गुड व्हेन you are doing in when you are indulging yourself in muscle strengthening exercises, तो तब प्रोटीन्स आपके हाईली एफिशिएंट है, तब तो आपने ज्यादा प्रोटीन्स देने हैं ताकि मसल्स बिल्डअप हो। लेकिन ज्यादा प्रोटीन्स देने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप करवा दें, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रोटीन्स की जो रिकमेंडेशन है वो हम यूजुअली कहते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एक बैलेंस्ड डाइट के लिए। मैक्सिमम अगर आपके पास एथलीट्स हैं, आपने उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग और मसल डेवलपमेंट और मसल ट्रेनिंग आप करवा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल आपके पास आ जाता है जो कि फोकस्ड है स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग के ऊपर, तो आप उसको उसकी नीड्स को देखते हुए 4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन इंटेक करवा सकते हैं ज्यादा। लेकिन इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट हो सकता है। आपकी बॉडी जो है नेगेटिव स्टेट प्रोटीन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जब प्रोटीन्स हम कंजम्पशन स्टार्ट कर दें तो आपकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अमोनिया टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है, और इसीलिए मेजॉरिटी एक तो ये कि हम फूड जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं वो आपका एटीपी प्रोडक्शन के अंदर जा रहा है, और प्रोटीन्स का काम बिल्कुल भी आपकी प्रोटीन्स जो है वो एनर्जी प्रोविजन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। आपके कार्ब्स आपके प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, फैट्स उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कार्ब्स। तो इसीलिए प्रोटीन्स का इंटेक ज्यादा करने के साथ साथ आपने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं। ये क्यों? ताकि प्रोटीन्स आपके मसल डेवलपमेंट में होते रहे, आपकी मसल बिल्डिंग होती रहे प्रोटीन्स के थ्रू, और एनर्जी प्रोविजन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल हो। साथ साथ फैट्स को भी हमें बैलेंस रखना चाहिए। प्रोटीन्स जो है आपके दो तरह की सोर्सेज में से आ सकते हैं। एक तो ये कि प्रोटीन्स जो है वो आपके एनिमल बेस्ड सोर्सेज भी हैं आपकी, और उसके अलावा आपके पास जो है प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी हैं। एनिमल बेस्ड के अंदर एक बहुत अच्छा ब्लेंड होता है आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का। दैट इज द रीजन वी गिव द एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स द नेम ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स। और जो आपकी प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं दे आर डेफिशिएंट इन वन और टू ऑफ द अमाइनो एसिड्स, that is why they are called as incomplete proteins. So it is very essential for the trainers and for the nutritionist and dietitian to focus on the complete sources of proteins for the individuals who are engaged in muscle strengthening and muscle building exercises. और जहाँ तक विटामिन्स और मिनरल्स की बात है, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट अब ये है कि मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर मेजर भी हैं, माइनर भी हैं। कौन से आप कौन सी सोर्सेज से ले सकते हैं वो मैं आपको एलेबोरेट कर देती हूँ। उसके साथ साथ पहले मैं विटामिन्स की बात करूंगी, तो विटामिन्स आर इंडल्ज्ड इन मेटाबॉलिज्म। उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज के अंदर भी विटामिन्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, और टिश्यू रिपेयर प्रोसेसेस के अंदर भी काफी हद तक विटामिन्स का रोल है। विटामिन्स आपके वाटर बेस्ड भी हैं, उसके अलावा आपके पास फैट सॉल्युबल भी हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स का इंटेक भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप अब यूं भी हो सकता है कि आप अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, तो आप विटामिन्स के लिए अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स अब वो जरूर लें। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स उस सूरत में मैं रिकमेंड करती हूँ कि जिस सूरत के अंदर मुझे ये नजर आ रहा हो कि इंडिविजुअल कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज का शिकार है। जैसे आपके पास काफी सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसीज आप क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू ही असेस कर सकते हैं। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, आप क्लिनिकल साइंस के थ्रू असेसमेंट्स करें अगर आपको डेफिशिएंसीज नजर आ रही हैं। और साथ वो लोग अगर मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर वैसे एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस के अंदर इन्वॉल्व हैं इंडिविजुअल्स, तो उस सूरत के अंदर आप अगर उनकी डाइट के थ्रू इनकॉर्पोरेशन करवा के आप कंप्लीट कर सकते हैं उनकी डेफिशिएंसीज, दैट इज वेल एंड गुड। बट इन केस व्हेन आपने कोई ऐसी डाइट सजेस्ट कर दी है या फिर इंडिविजुअल ही अनेबल है कि वो उतनी हद तक नहीं कंज्यूम कर सकता,
थ्रू द डाइट, तो फिर उस सूरत के अंदर आप सप्लीमेंट्स ज़रूर ऐड करवाएँ। आई गेस मीटिंग का टाइम ये खत्म होने वाला है, तो वी आर सपोज्ड टू जॉइन द मीटिंग अगेन।